أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخرجنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا ہم لوگ پڑھ رہے تھے استعاذہ اور بسم اللہ کے بیان میں، اور اس میں جیسے ہم نے یہ کہا کہ کوئی بھی ٹاپک شروع کرنا ہے تو ہر ٹاپک کے کچھ کی پوائنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ انہیں اچھے سے سمجھ لیں اور پھر یاد کر لیں تو وہ سارا ٹاپک آسان ہو جاتا ہے. استعاذہ اور بسم اللہ کے ٹاپک کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ کیا تھے؟ سب سے پہلی بات آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ استعاذہ اور بسم اللہ کب کب پڑھی جاتی ہے. تو ہم نے کہا تھا استعاذہ جو ہے وہ ہر تلاوت کے آغاز پہ ہوتا ہے، اور جو بسم اللہ ہے وہ ہر سورت کے آغاز میں ہوتی ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابتدا اگر دیکھیں تو ابتدا کرنے کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. پہلی ہوتی ہے ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت. دوسری ہوتی ہے ابتدائے تلاوت، درمیانے سورت. ابتدائے تلاوت، درمیانے سورت. اور تیسری ہوتی ہے ابتدائے سورت، درمیانے تلاوت. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو آپ کو یاد ہونا چاہیے. ابتدائے سورت، درمیانے تلاوت. اچھا جی. اس کے بعد آپ کو تیسرے نمبر پہ جو بات یاد ہونی چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں شکلوں میں ابتدا کی تینوں شکلوں میں کیا کیا پڑھا جائے گا استعاذہ اور بسم اللہ کے اعتبار سے. تو اگر ہم آپ پہلی شکل دیکھتے ہیں تو پہلی شکل میں ابتدائی تلاوت کی وجہ سے استعاذہ پڑھا جائے گا اور ابتدائی سورت کی وجہ سے بسم اللہ پڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ استعاذہ اور بسم اللہ دونوں چیزیں پڑھی جائیں گی. اگر آپ دوسری صورت دیکھتے ہیں تو اس میں ابتدائی تلاوت کی وجہ سے استعاذہ ہوگا اور درمیانے صورت کی وجہ سے بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اختیار ہوگا. ٹھیک ہے، اور تیسری شکل میں ابتدائی صورت کی وجہ سے بسم اللہ ہوگی اور درمیانے تلاوت کی وجہ سے کچھ بھی نہیں. تو یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے. پہلی چیز آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے کہ ہر تلاوت کے آغاز میں بسم اللہ استعاذہ ہوتا ہے، ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہوتی ہے. ابتدا کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی تلاوت شروع کرتا ہے تو 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. یہاں تو ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت ہوگی، یا ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، یہاں ابتدائی صورت درمیانی تلاوت. اور ہر شکل میں استعاذہ اور بسم اللہ کی تفصیل آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے کہ ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت میں استعاذہ اور بسم اللہ دونوں پڑھا جائے گا، ابتدائی تلاوت درمیانے صورت میں استعاذہ پڑھا جائے گا، بسم اللہ پڑھنے میں اختیار ہے. اور تیسری بات ابتدائی صورت درمیانے تلاوت میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، استعاذہ نہیں ہوگا. یہ 3 باتیں ہو گئی جو آپ کو یاد ہونی چاہیے. اس کے بعد آگے آ جائیں. چوتھی بات، اگر آپ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے استعاذہ ہے، بسم اللہ ہے یا سورت کی پہلی آیت ہے، اگر آپ اس کو ملاتے ہیں تو کیا آپ سب چیزوں کو ایک ساتھ سے پڑھ سکتے ہیں یا آپ سب چیزوں کو الگ الگ ساتھ میں پڑھیں گے؟ تو اس اعتبار سے بھی 4 شکلیں بن جاتی ہیں. اسے کہتے ہیں فصل وصل کے اعتبار سے جو تقسیم ہے. فصل وصل کے اعتبار سے تقسیم چوتھا پوائنٹ ہے، یہ آپ کو اچھے سے ہونا چاہیے یاد. فصل وصل کے اعتبار سے 4 شکلیں بنتی ہیں. پہلی شکل ہے فصل کل، دوسری ہے فصل اول وصل ثانی، تیسری ہے
वस्ले अव्वल फसले सानी, और चौथी है वस्ले कुल। अगर ये आपको चार बातें, चार पॉइंट अच्छे से याद हो गए और समझ आ गया ना, तो फिर हम आगे आसानी से चल सकते हैं। ठीक है, फसल वसल की चारों शक्लों को याद कर लें। फसले कुल, फसले अव्वल वस्ले सानी, वस्ले अव्वल फसले सानी और वस्ले कुल। ये हमारे सारे, आप कह लें कि बुनियादी कंसेप्ट हैं जो पूरे टॉपिक में इस्तेमाल होने हैं। इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर लें। चले अब आगे। अब आपने क्या करना है, इब्तिदा की हर शक्ल को उठाना है। इब्तिदा की तीन शक्लें होती है ना, इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह की तफसील के साथ। और आपने ये चेक करना है हर शक्ल में फसल वसल की क्या तरतीब होगी, फसल वसल की चारों तरीके ही जायज होंगे या कोई तरीका मना होगा। तो इब्तिदा की आप पहली शक्ल उठाएं, वो है इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत। ठीक है, इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत। चले, अब हम सूरत को फिक्स कर लेते हैं ना, सूरत कौन सी है। सूरत तो कुरान पाक में कोई सी भी हो सकती है। तो हम इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत, सूरत की जगह हम इब्तिदाए फातिहा लिख सकते हैं। ठीक है, सूरह फातिहा की इब्तिदा, इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए फातिहा से। अच्छा, इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई फातिहा में क्या होगा, इब्तिदाई तिलावत की वजह से इस्तिआज़ा पढ़ा जाएगा और इब्तिदाई फातिहा की वजह से बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। ठीक हो गया। चले, इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बन गया, अब हमारे पास तीन चीजें बन गई हैं। एक है इस्तिआज़ा, ठीक है, इस कंडीशन में। दूसरी है बिस्मिल्लाह, और तीसरी है सूरह फातिहा की आयत नंबर 1। अब आप इन तीन चीजों को फसले कुल के साथ भी पढ़ सकते हैं, और फसले अव्वल वसले सानी के साथ भी पढ़ सकते हैं, वसले अव्वल फसले सानी के साथ भी पढ़ सकते हैं, और वसले कुल के साथ भी पढ़ सकते हैं। चले देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे आप करेंगे फसले कुल, फसले कुल, तो फिर क्या होगा, आप फिर ऐसे पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको आऊज़ बिल्लाह को पूरा लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और रजीम पे फसले कुल पढ़ना है ना, तो और रजीम पे आप वक़्फ़ कर देंगे। फिर आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और आप अर रहीम पर भी वक्फ कर दें। फिर आप पढ़ेंगे सूरत की आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, और जो अल आलमीन है, इस पर भी आप वक्फ कर देंगे। हर चीज पर वक्फ कर दिया ना, हर चीज पे वक्फ कर दिया, इसको कहेंगे फसले कुल। अब हमारा फसले अव्वल वसले सानी कैसे होगा, यहीं से हम इसको काट के इसी को एडिट कर लेते हैं। फसले अव्वल वसले सानी कैसे होगा, चलें जी, पहले ऊपर हम लिख लेते हैं फसले अव्वल वसले सानी, फसले अव्वल वसले सानी। अब देखिए, फसले अव्वल का मतलब क्या है, तो तीनों चीजों में से सबसे पहली चीज है ना, उसको काटें। तीनों चीजों में से सबसे पहली चीज आउज बिल्ला है, तो आउज बिल्ला पे तो हम करेंगे वक्फ, वस्ले सानी, और दूसरी चीज को मिला दें। दूसरी चीज हमारे पास बिस्मिल्लाह है ना, तो यहाँ से हम वक्फ को रिमूव कर देंगे। वक्फ नहीं होगा बिस्मिल्लाह पे, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, रहीम मिल, मीम जेड लाम मिल हो जाएगा, मीम की जेड लाम के साथ मिला के पढ़ी जाएगी। और फिर अल आलमीन पे तो वक्फ होगा ही होगा। तो ये है फसले अव्वल वसले सानी को पढ़ने का तरीका, कि फसले अव्वल आप पहले हिस्से को काटें, आप उस पे वक्फ करें, और वसले सानी जो दूसरा हिस्सा है ना, उसको मिला दें। ये तो जाहिरी बात है, दूसरा हिस्सा तीसरे हिस्से के साथ ही मिलाया जाएगा। फिर क्या है अगली शक्ल, अगली शक्ल होती है वसले अव्वल, ठीक है, और फसले सानी। चलें, इसको भी हम यहीं पे लिख लेते हैं, वसले अव्वल फसले सानी। अब वसले अव्वल क्या है, पहले हिस्से को मिलाना।
تو ये जो वक़फ़ है ना यहाँ पे पहले हिस्से का, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले को मिलाना, किसके साथ मिलाना? बिल्कुल जाहिरी बात है कि दूसरे हिस्से के साथ मिलाया जाएगा, जो कि बिस्मिल्लाह है। तो बन जाएगा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। ठीक है, और अर्रहीम पे हम कर देंगे वक्फ। ये दो चीजें मिल जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह अलहदा हो जाएगा। चले, ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास अगली शक्ल वस्ले कुल। ठीक है, जितनी भी चीजें शुरू में इकट्ठी हो रही हैं उन सबको मिलाकर पढ़ना। वस्ले कुल, वस्ले कुल में क्या होगा कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आउज़ बिल्ला के बाद भी वक्फ नहीं होगा और बिस्मिल्लाह के बाद भी वक्फ नहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो भी इनके साथ ही मिलाकर पढ़ी जाएगी। चले, इसको भी हम लिख लेते हैं। कैसे होगा? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारी वस्ले कुल हो गई। तो चार शक्लें बनती हैं इब्तिदाई तिलावत। इब्तिदाई सूरत में चार शक्लें बनती हैं फसल वसल के एतबार से, और चार की चार ही जायज हैं। इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत में चार शक्लें बनती हैं और चार की चार शक्लें ही जायज हैं। इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत में फसल और वसल के एतबार से चार शक्लें बनती हैं और चार की चार शक्लें ही जायज हैं। यहाँ तक जो है ना वो हमने इब्तिदा की तीन शक्लों में से एक शक्ल इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत का हुक्म अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लिया है। अब हम ये करते हैं कि हम एक बार किताब पर जाकर इस चीज को किताब से पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। किताब पर आ जाएं। जिन लोगों की एक्सरसाइज रहती हैं वो एक्सरसाइज जरूर पूरी करें। इसी से ही आपकी सेल्फ प्रैक्टिस होती है, और सेल्फ प्रैक्टिस के बगैर जो है वो पुख्तगी नहीं आती है। ये पेज तो हमने पढ़ लिया था ना, ये हमने पढ़ लिया था। यहाँ से आते हैं। कहते हैं इब्तिदा की इकसाम फसल वसल के एतबार से। सबसे पहली शक्ल होती है इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत। इसमें तावुज़ और बिस्मिल्लाह दोनों जरूरी होते हैं। तावुज़ क्यों जरूरी होता है? इब्तिदाई तिलावत की वजह से। और बिस्मिल्लाह क्यों जरूरी होती है? इब्तिदाई सूरत की वजह से। इसमें फसल वसल के एतबार से चार शक्लें बनती हैं। फसले कुल, फसले अवल, वसले सानी, वसले अवल, वसले सानी, वसले कुल। और चार की चार शक्लों का हुक्म क्या है? चारों की चारों शक्लें जायज होती हैं। कहते हैं अब हर एक को बताते हैं। फस्ते कुल क्या होता है? फस्ते कुल ये होता है इस्तिआज़ा, बिस्मिल्लाह और सूरत। सूरत की जो पहली आयत है तीनों को अलग अलग सांस में पढ़ना। आगे उन्होंने ये जो गोल निशान लगाया है ना, ये इस बात का की अलामत है कि हर आयत के बाद, हर जुज के बाद, ये जुज है ना, एक जुज दूसरा जुज तीसरा, हर जुज के बाद जो है वो वक्फ किया जाएगा। फिर दूसरी शक्ल फसले अव्वल वसले सानी है। इसका मतलब है इस्तिआज़ा को अलग सांस से और बिस्मिल्लाह और सूरत को दूसरे सांस से पढ़ना। ठीक है, ये एक सांस हो गया। अब देखें इन दोनों के दरमियान में कोई भी निशान नहीं लगाया ना आयत का। चले, फसले अव्वल फसले सानी क्या है? इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह को एक सांस से और सूरत को दूसरे सांस से पढ़ना, और फिर उसको आगे लिख के बता दिया है। वस्ले कुल ये है कि इस्तिआज़ा, बिस्मिल्लाह और सूरत तीनों को एक ही सांस में पढ़ना। चलें, यहाँ तक जो है ना वो हमारी एक बात मुकम्मल हो गया। अब कौन है जो मुझे ये पढ़ के सुनाएगा? हैंड रेज करें। चले, हनफा। हनफा आप अपना माइक खोलें तो खुल जाएगा। मैम सिर्फ ये तवज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनाओ। मैं आपको बताती हूँ फसले कुल कैसे पढ़ेंगे, पढ़ के सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
शाबाश, वेरी गुड, बारकल्लाह फीकी। रानी, आप अपना माइक खोलें। जी मैम। आप मुझे फसले अव्वल वसले सानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये समझें कि जो अल्हम्दु का लाम है ना, अल्हम्दु का जो लाम है ये लाम तारीफ है, और इसका जो हमजा है ये हमजा वस्ल है। और हमजा वस्ल जो है वो दौरान कलाम में हज़फ हो जाता है, गिर जाता है। इसलिए जब आप मीम की जेर को लाम के साथ मिलाएंगे तो अल्हम्दु की जो जेर है, अल्हम्दु के लाम, हमजा की जो जबर है वो गिर जाएगी। ऐसे होगा रही मिल हमदुलिल्लाह। पढ़े रानी, जी। दोबारा पढ़े। मिल हमदु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलें, शाबाश। आगे राबिया नाज, आप माइक खोलें। चले, वालेकुम अस्सलाम। वस्ले अव्वल वस्ले सानी पढ़ के सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين अल्लाह फिक आमीन। चले, साइमा आबिद, आप माइक खोलें अपना। साइमा आबिद, अपना माइक खोलें। नादिया कोकब। जी चले मैडम। साइमा, साइमा आप मुझे वस्ले कुल पढ़ के सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने ये समझाया ना कि मिल को जब मिलाएंगे मीम को लाम के साथ तो रहीम मिल हो जाएगा, रहीमी अल नहीं रहेगा। और जी। रहीम मिल हमदू, दोबारा लाए। आऊज़ु बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ताला फिके। नादिया को आप अपना माइक खोलें। जी उस्ताद जी। नादिया, आप मुझे बताएं, इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत में फसल वसल के एतबार से कितनी वजह बनती है, और कितनी जायज होती है, कितनी नाजायज होती है? इब्तदाई तिलावत इब्तदाई सूरत फसले कुल जायज़ है, फसले अव्वल वसले सानी भी जायज़ है, वसले अव्वल फसले सानी भी जायज़ है और वसले कुल भी जायज़ है। कितनी टोटल कितनी वजह होगी? 4 हैं उस्तादा जी और चारों की चारों जायज़ है। चलो शाबाश। साजदा सारंग। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। वालेकुम अस्सलाम। साजदा, आप ये बताएं कि इब्तिदा की कितनी शक्लें होती हैं, इब्तिदा कितनी तरह से होती है? इब्तिदा की मैडम, इब्तिदा की अक़साम। हाँ, इब्तिदा इब्तिदाई सूरत कितनी होती है? इब्तिदा दो। की 3 अक़साम है। इब्तिदा की 3 अक़साम है, इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत, इब्तिदाई तिलावत, दरमियानी सूरत और इब्तिदाई सूरत, दरमियानी तिलावत। शाबाश, वेरी गुड, बारकल्लाह फीक। सादिया रहीम। सादिया, आप ये बताएं कि इब्तिदा की हर शक्ल में इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह की क्या तफसील होती है? इब्तदाई तिलावत इब्तदाई सूरत में तावुज़ और तस्मिया दोनों पढ़ी जाएंगी। इब्तदाई तिलावत दरमियाने सूरत में तावुज़ पढ़ा जाएगा और बिस्मिल्लाह ज़रूरी नहीं है। और इब्तदाई तिलावत चलो, मैं आपको नाम, तो आपने हुक्म बताना है। इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत में क्या होगा? तावुज़ और तस्मिया दोनों पढ़ा जाएंगी।
اور ابتدائی تلاوت درمیانے صورت میں تعوض ہوگا لیکن تسمیہ نہیں. تسمیہ میں اختیار ہے. تسمیہ میں اختیار ہے جی. ہاں کوئی چاہے تو پڑھ لے, کوئی چاہے تو نہ پڑھے, ٹھیک ہے. اور ابتدائی صورت درمیانے تلاوت میں اور تعوض پڑھا جائے گا اور ابتدائی ابتدائی صورت صورت درمیانے تلاوت. اس میں بسم اللہ پڑھی جائے گی اور تعوض اور تسمیہ دونوں پڑھے جائیں گے. نہیں نا, ابتدائی صورت ہے نا, ابتدائی صورت ہے. ابتدائی صورت میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, اور درمیانے تلاوت ہے. درمیانے تلاوت میں تو استعاذہ نہیں ہوتا, استعاذہ تو ابتدائی تلاوت میں ہوتا ہے نا. تو ابتدائی صورت درمیانے تلاوت میں استعاذہ نہیں ہوگا, صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی, ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. سعدیہ ٹھیک ہے, مائک کھولے, اپنا مائک نہیں بند کرنے, پہلے بات تو پوری ہو جائے. جی جی ٹھیک ہے, جیسے ہم بین سورتین پڑھتے ہیں نا, ابتدائی صورت درمیانے تلاوت کا مطلب بین سورتین ہی ہوا نا, دو صورتوں کے درمیان میں استعاذہ نہیں ہوتا, صرف بسم اللہ ہی ہوتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک چلیے یہاں تک ہماری آج کا سبق ہو گیا. کل ہم کیا پڑھیں گے؟ کل ہم پڑھیں گے ابتدائی تلاوت درمیانے صورت. ابتدائی تلاوت درمیانے صورت میں فصل وصل کی کتنی وجہ بنتی ہیں, اور دیکھیں اس میں کوئی وجہ ناجائز بھی ہوگی تو ہم یہ پڑھیں گے ناجائز کون سی وجہ ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے. پھر ابتدائی صورت براءت کا حکم ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے, اس کو جلدی جلدی دیکھیں گے. اور پھر ابتدائی تلاوت درمیانے صورت. ٹھیک ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑا سا خود بھی آگے پڑھ کر آنے کی کوشش کریں, تاکہ ہم کل یہ جو ہے نا ٹاپک کور کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.